Hi Santosh, welcome all of you once again on my channel. And you all are much aware about the steep controversies between the Ayurveda and allopath right nowadays. But as per my opinion, there should be no controversies because Ayurveda and allopath has their own importance. See, in regular practices, yoga, Ayurveda, naturopathy, these are very, very important. But when it comes to the emergency or surgery like situation, allopath has their own importance. So there should be no controversy. I think this controversy has been created very intentionally because see, we are going through a very severe situation of COVID, but a patient who is severely affected by COVID, there is no solution in Ayurveda, right? But if you are a regular practitioner of yoga, if you usually use the Ayurvedic things and you are much aware about those things, you can alienate from being affected by this COVID-19. So, as per the prevention purpose, Ayurveda, yoga, naturopathy, these are very, very important thing. And but the controversy should be on the corruption of the hospitals. The controversy should be the corruption in the allopathic medicines, right? Because if you ever visited in the hospital, you yourself know the corruption in hospitals, in prescription, in medicine, in tests, everywhere you got the corruption. In a show in Satyameva Jayate, Amir Khan and Dr. Gulati had said there is a 30% commission by the doctors. So IMA, have you ever heard this issue has been raised from the IMA or any medical agency who look after these hospitals or IMC? You never ever heard this, right? Because they all are the part of that. Sometimes what happens if the patient is in hospital in the ICU on the ventilators, even the dead body is put up on the hospital on the ventilators for 3-4 days, right? And the patients have been charged even after his death. This is the situation of the hospital. This is the situation of the corruption, but no medical body will raise this issue. I think the controversies should be on that. The news channel should raise these issues, but they will never ever do this, right? They are just demeaning the Ayurveda, they are just demeaning the naturopathy, they are just demeaning the yoga. While yoga is recognized internationally, the International Yoga Day has been celebrated, but this is very much purposefully agenda created. Just watch this video of Akshay Kumar, who is very categorically said the importance of naturopathy, the importance of yoga, the importance of Ayurveda. Just watch this video, friend. I request all of you, please watch this video. Thank you very much. बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, वैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ रहे हैं
और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को। देखो भैया, मुझे एलोपैथिक दवाई या उसके इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत सही है। लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आयुर्वेदा दवाई में वगैरह में कभी कभी कुछ लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उन चीज़ों में कुछ मिलावट कर देते हैं, लेड या आर्सेनिक जैसी चीज़ें मिला देते हैं। लेकिन अगर आप सही ऑथेंटिक जगह जाओ तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है आयुष नाम से, जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एनकरेज करती है। मैं कहीं पढ़ा भी था कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में मिलता है। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में, ढेर सारा पैसा खर्च कर देंगे। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूं, वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। यार, वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं और हम नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और बाय गॉड, अब भगवान के लिए ये मत सोच बैठना कि मैं ये सब किसी आयुर्वेदा कंपनी या सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोल रहा हूं। ये बातें मैं अपने खुद के बॉडी का ब्रांड एम्बेसडर बन के कह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आज से विनती करता हूं कि आप सब भी अपने बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर खुद बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जीना सीख लें और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हमारे आयुर्वेदा और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शंस में नहीं है। भैया, करके देखो यार, मेरी गारंटी है कि मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठोगे।